Hello, beautiful people. How are you today? This is Bhairavi here, आपकी host आज के लिए. And हमारे साथ आज बहुत beautiful सी मालविका जी जुड़ी हुई हैं. And it is nice to have you here, मालविका जी. And this event has been organized. ये live chat organize हुआ है moms की तरफ से. Moms यानी multitasking, outstanding mothers space. Or this is being founded by Raseshwari Hindustani, and she has a club called Beyond Imagination. Beyond Imagination Club is एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक मदर्स के लिए एक बहुत सेफ स्पेस है, जहाँ हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं एंड एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, अपनी स्किल्स शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, एंड वी ऑल हेल्प ईच अदर टू ग्रो टुगेदर एज अ कम्युनिटी, एज अ वुमन ट्राइब. So this is a very beautiful space, and I welcome you all today to join us. And Malvika ji, very welcome to you, a warm welcome, and it's nice to have you here with us. So I saw your profile, and it's a very interesting journey. Kahan law, kahan education, counselor. Just can you tell us about your journey? Kaise hua? Namaskar. Bhairavi, thanks a lot. It's my proud privilege to be here today in this platform. It's really very nice to have me here. And Rajeshwari, whom you know, she is known to me as Rashmi. Actually, she was my junior in my hostel days. And she was very close to me. So anyway, big thanks to Rajeshwari Hindustani for making this platform. And I'm very blessed and happy to share my life journey, my challenges, and my all through whatever experience that I'm going to share with all among other angel moms. Yes. So, Bhairavi, mom, the word for me, mom is, as you people are saying, multitasker. Yes, of course, multitasking woman who can, if she wants, who can do miracles, not only wonders, miracles. So that is the word mom. Yes. Very well said. आपने एक लॉ की पढ़ाई करी एंड देन आपने आगे बढ़कर एजुकेशन में काम किया एंड यू वर्क एज अ काउंसलर. That is where your passion lies. So tell us something about that journey. I understand with your spelling of Maulavika that you are a Bengali, and Bengali लोग तो डबल ग्रेजुएट कुछ भी नहीं होता, PhD तो 2-4 कर लेते हैं वैसे ही, like so education का वहाँ पर थोड़ा ज्यादा importance रहता है. तो tell us something about that also, क्योंकि I have not come across a Bengali who is less than a PhD holder. डबल ग्रेजुएट तो ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे कोई 10th 12th करता है वैसे तो डबल ग्रेजुएशन ऐसे ही कर लेते हैं वो लोग, पोस्ट ग्रेजुएशन तक. तो why is it so important for Bengalis to study so much, और क्यों इतना ये करता है, एंड आपकी जर्नी के बारे में भी थोड़ा बताइए. First of all, I am not a Bengali. Okay. I got married to a Bengali fellow. Fine. I am basically from Rajasthan, from a Marwari Brahmin family. I was that time when I was studying, Rajeshwari was my junior in my hostel. I was doing law. Fine. Then I did my law. I practiced in High Court. After that, before law, I did masters in psychology actually. So कहते हैं ना कि पढ़ाई कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है, कुछ ना कुछ, मतलब कहीं पर भी कुछ भी बेकार नहीं जाता है. So that happens with me also. So I was practicing and I got married, and my husband, he is basically in transferable job. So that time I set my priority that I got married. So I traveled with my husband from one corner to other corner. So all of India's not to west, even far northeast too. I have stayed in northeast also. So I have met so many people in my life, in my journey, different cultures. I have learned. So I think I'm blessed. People think it is a problem, but no, I never find it as a problem.
Rather, I find it as an opportunity that I have been to so many places, so many cultures, and that time I changed my profession. So that happens like that because I was traveling, I was staying in one place at a straight maximum 3 to 5 years. So I could not rather continue my practice. So I joined school. As in whatever opportunity comes to me now, I grab that and I do it. Always I do it very passionately. So that is why my journey was very happy, very fulfilling, very content. Everything was whatever I've learned, I took it as a challenge. So that is why I changed my law background to as an educationist and a counselor. My previous studies that worked here. So that is good in disguise. Yes. ये होता है हमेशा कि कभी ना कभी एक चेंज ऐसा एक डाइवर्जन मिल जाता है जो आगे चल के हमारा करियर बन जाता है, तो सोच के कुछ और निकलता है और पहुंच कहीं और जाता है, बट एंड एक्चुअली दैट कम्स एज अ ब्लेसिंग आल्सो, क्योंकि उसमें हम लोगों का पैशन फिर झलकता है, उसमें फिर हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं एंड ऑल दैट। तो अभी आप एज काउंसलर जब काम करती हैं तो फिर आपको क्या चैलेंजेस आते हैं, आपको मदर्स के साथ या बच्चों के साथ, आप किसके तरह साथ आपको लगता है कि ज्यादा चैलेंजेस आते हैं? पेरेंट्स का चैलेंजेस ज्यादा रहता है या बच्चों का चैलेंजेस ज्यादा रहता है? मैं आपको बताऊं भैरवी जी, not only with only parents, it is equal, parents as well as kids, because school में I met so many people now, like बच्चों के पेरेंट्स बच्चों के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और वो जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो एज हमारे पास एक चैलेंज होता है कि उसको कैसे उनको भी ओवरकम करवाया जाए, बच्चों को भी ओवरकम करवाया जाए और हम भी करें। तो ऐसे बहुत सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है और जब तक वो प्रॉब्लम सामने नहीं आए तब तक उसका सोल्यूशन समझ में नहीं आता, बिकॉज ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज यूनिक एंड दोज प्रॉब्लम we cannot compare or we cannot think beforehand कि क्या हो सकता है, इसके आउटकम क्या होगी। I tell you, एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। I was in North East. I was teaching. I was not rather teaching counseling 11 and 12. And there's a girl. She was very good at studies, but वो क्लास में बहुत डिटोरियस हो रहा था उसका। तो one day she came to me and said कि मैम मुझे मेरे मैथ्स टीचर से बहुत डर लगता है। तो आई सेड कि व्हाई? तो शी सेड कि मैं कुछ भी बोलने जाती हूँ तो सर बहुत, एक्चुअली द टीचर वाज फ्रॉम हरियाणा, सो हिज टोन, हिज वे ऑफ स्पीकिंग दैट वाज वेरी अक्खड़, जिसको हम अक्खड़ लैंग्वेज बोलते हैं ना, दैट वाज लाइक दैट। सो वो कुछ भी बोलने से पहले इतना घबराती थी कि सही आंसर भी उससे बोला नहीं जाता था। तो डे बाय डे शी वाज लूजिंग हर कॉन्फिडेंस। सो आई टोल्ड हर, ओके you don't have to say anything, I will try to solve this problem. Then I called the teacher and I told him, sir, this is the problem. आप उसको सॉफ्टली बोलो और आप उससे बोलो कि you can do it, तुम ये कर सकती हो, तुम बोलो, you change your way of talking, you see. And Bhairavi, it works like miracle. वो मेरी स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम में she did very well. So that was the bridge where we have to smoothen out. So वो करना होता है। तो आप एज काउंसलर आप सिर्फ बच्चे टीचर नहीं, आप पेरेंट टीचर बच्चे तीनों के बीच का ब्रिज हो। Exactly. You are you bridge on all the three relationships and it is a very crucial relationship क्योंकि ये फाउंडेशन होते हैं बच्चे के लाइफ का। तो आगे जाके इस चीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज इवन आई हैव सी कम अक्रॉस चिल्ड्रन जो बुलिंग का उसका शिकार होता है एंड टीचर्स उतना केयर नहीं करते, पेरेंट्स बोलते हैं इट्स जस्ट अ पासिंग फेज, छोड़ दो। एंड आई हैपन टू कम अक्रॉस अ चाइल्ड हु अटेम्प्टेड सुसाइड लास्ट ईयर and he was going through this phase of bullying from his class 1. तो वो 10-11 साल उसने वो सहन किया and in class 11 he attempted suicide. So this repeatedly happened in his past year. तो आप ये जो काम कर रहे हो it is like you know really God's blessing बोल सकते हैं
कि आप इतने सारे बच्चों को एक गाइडेंस दे रहे हो, पेरेंट्स को एक रूट दिखा रहे हो, टीचर्स को हेल्प कर रहे हो टू ब्रिज बिटवीन द थ्री। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है आपका, आप जो काम कर रहे हो वो। आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज इट दैट वन थिंग दैट पेरेंट्स स्पेशली व्हेन इट कम्स, अभी बहुत सारी मदर्स हम लोगों को देख रही होगी, ये लाइव में जुड़ी होगी, तो व्हाट इज दैट वन थिंग या व्हाट आर दोस पॉइंटर्स कि उनको ध्यान रखना चाहिए वेयर they understand that the child is going through something or the child needs some extra help, या how they can deal with the child, या कुछ basics जो उनको ध्यान में रखना चाहिए? First of all and foremost, first thing is, सबसे पहले पेरेंट्स को अपनी जो इच्छाएं हैं या अपनी जो ड्रीम्स है वो बच्चों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, वो बच्चों के ऊपर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पेरेंट्स शुड लिसन टू देयर चिल्ड्रन कि वो क्या चाहते हैं, उनको पहले सुनने के बाद यदि उनको लगे कि दैट इज नॉट राइट फॉर देम तो समझाने की कोशिश करें, जबरदस्ती नहीं। आप जबरदस्ती करके कुछ भी नहीं करवा सकते, बिकॉज जब हम जबरदस्ती करते हैं तब बच्चे हो या बड़े हो या मॉम्स हो या डैड हो, कोई भी हो, वो खुशी खुशी उस काम को नहीं करते, एक प्रेशर में आके करते हैं। एंड वो प्रेशर में आके कुछ भी आप करो, दैट विल नॉट फुलफिल योर कंटेनमेंट और हैप्पीनेस, आपका फुलफिल नहीं कर सकता है। इसलिए आप कुछ भी करो वो आपकी खुशी से करो, whatever your dreams, whatever your wish, but that should be comes from your inside, not कि outer pressure में आके आप करते हैं। तो that is very important। तो पेरेंट्स को फर्स्ट ये समझना चाहिए कि बच्चों की इंक्लिनेशन या उनके रुझाव किस साइड है, उसको समझ के उसको, ये नहीं कि मेरे घर में डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है और बाकी बच्चे ऐसे हैं तो आपको भी करना है। And nowadays, so it is hardly matters. There is so many fields, vast fields. Fields have become so vast. So आप कुछ भी कर सकते हो, but whatever you do, do it passionately. वो passion उसमें आना चाहिए, जबरदस्ती करोगे तो passion आ ही नहीं सकता। exactly. और passion जहाँ पे नहीं है, आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। और मैं मॉम्स के लिए भी कहना चाहती हूँ, खुशी कहीं भी नहीं है, किसी भी जगह नहीं है, खुशी सिर्फ एक जगह है, that is here. Here is the happiness. If you are happy from here, everything is very nice, very beautiful. If you are not happy from here, nothing is good. आपके पास चाहे कुछ भी हो, आपके पास 10 गाड़ियां हो, 10 घर हो, प्रॉपर्टीज हो, बैंक बैलेंस हो, if you are not happy from here, your happiness is nowhere except here. So you should be here, happy from here. That is my concept. मैं हर मॉम से भी यही कहना चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपने आप से प्यार करो। You love yourself. If you cannot love yourself, you can't love anyone. Because self-love is very important. सिर्फ self-love ही नहीं, you respect yourself, you accept yourself, be yourself. Acceptance in the sense, आप जैसे भी हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। Whatever your strong point, whatever your weaknesses, you accept that and try to create yourself. Don't never try to find or search yourself. अपने आप को कहीं भी दूसरों में, यदि वो ऐसा करता है मुझे ऐसा बनना है, ढूंढने की कोशिश करोगे तो you will be landed up nowhere. So it's better to create yourself. आपको कुछ करना है तो आप अपने आप को क्रिएट करो, आप अपने अंदर उस चीज को डेवलप करो। सबके अंदर कुछ ना कुछ है। Each and every people are unique. So yes. This uniqueness, use your uniqueness. आप उसे करके अपने आप को क्रिएट करो। For all the moms, all these platforms, all the angel moms, this is my मूल mantra that you should create yourself rather than find or search yourself. Very well, very beautifully said. आपने बहुत अच्छे से बताई है। बिकॉज यही हो जाता है बहुत बार, कंपैरिजन का प्रॉब्लम हो जाता है कि अच्छा ये लेडी ये कर रही है तो मुझे भी ये करना चाहिए, वो इस प्रोफेशन में तो मुझे ये करना, अच्छा उनका बच्चा ये पढ़ रहा है तो मुझे भी मेरे बच्चे को भी ये पढ़ना चाहिए।
उसको ये पैकेज वाला मिला तो मेरे बच्चे को भी मिलना चाहिए। ये बहुत बार हो जाता है, ऑल दिस हैपेंस क्वाइट ऑफन, तो इट इज वेरी डिस्करेजिंग। बट आपने ये जो कहा ना, इफ यू आर हैप्पी विद इन योर सेल्फ, खुद को अगर समझ पा रहे हो, खुद को रिस्पेक्ट कर पा रहे हो, देन एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। दैट इज सो वेरी ट्रू कि हाँ ये ऐसा होता है करके। आप अभी ये मॉम्स ग्रुप, हाँ बताइए। मैं यहाँ पे एक छोटा सा चीज ऐड करना चाहूंगी। एज अ एजुकेशनिस्ट, एज अ काउंसलर, मेरा एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है। मैं एक छोटे से टर्म्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हमारा जो माइंड है, आवर माइंड इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। ये शायद सब जानते भी हैं, पर वी डोंट नेवर ट्राई टू यूज इट। ये कैसे है, मैं बहुत 2 सेंटेंस में आपको समझाना चाहूंगी कि आवर माइंड इज divided into 3 levels, and those levels are called unconscious mind, subconscious mind and conscious mind. हमारा जो conscious mind है, that is our mind's only 10%, and our maximum mind space occupied by our unconscious mind. तो हम जो करना चाहते हैं या जो हमारी झील है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो सब कुछ हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है, लेकिन हम उसे कॉन्शियस माइंड में ला के ही उसे अप्लाई कर सकते हैं। बट वो कॉन्शियस माइंड में लाने की जो जर्नी है, दैट कम्स अंडर सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस माइंड। सो वो जो सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस माइंड है, दैट इज द हेयर लाइन फ्रॉम कॉन्शियस माइंड। तो जब तक हम कॉन्शियस माइंड में नहीं लाएंगे और अपने आप को नहीं कहेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं या हम करेंगे या आई वांटेड टू डू इट, तब तक आप उसे नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो दबी हुई इच्छाएं हैं, आप लाइफ इज एक बार मिलती है। मुझे नहीं पता कि पास्ट लाइफ कुछ होता है या फ्यूचर लाइफ, नेक्स्ट लाइफ कुछ है कि नहीं है। एक आपको मिली है, दिस इज योर लाइफ। एवरी मॉम्स, एवरी इंडिविजुअल हैव ऑल द राइट्स टू एंजॉय देयर लाइफ। तो वो जो आपके मन है, जो आपकी मर्जी, आप उसको पूरे करो, सब कुछ करो, क्यों ना करो। सिर्फ घर के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए नहीं जीना है, खुद के लिए भी जीना है। तो टेक आउट सम स्पेस, सम टाइम फॉर योरसेल्फ आल्सो। और इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम हियर, everything will be pleasant and nice. So that is very important. आपने बहुत करेक्टली कहा, क्योंकि दिस इज कॉमनली फाउंड के ज्यादातर वुमेन है, मदर्स है, वो बाकी सब चीज को प्रायोरिटी पहले देती हैं। मे बी इवन हर वर्क, हर जॉब, उसका घर का काम या हस्बैंड, चिल्ड्रन, एवरीथिंग एल्स इज ऑन प्रायोरिटी लिस्ट, बट खुद को कभी भी प्रायोरिटी नहीं देती है। वो लास्ट में आती है। हाँ, वो हमेशा लास्ट में आती है, चाहे वो ब्रेकफास्ट करने में हो या रात को जाके सोने में हो। शी इज ऑलवेज लास्ट। यस, शी इज ऑलवेज लास्ट। तो सब खुद के बारे में सोचो। घर वाले इसीलिए फॉर ग्रांटेड लेते हैं हाँ, कि हाँ मम्मी तो खा लेगी या मम्मी तो कर लेगी या मम्मी का तो ये है। बट नो, यू लव योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। अपने आप को रिस्पेक्ट करो, अपने आप को एक्सपेक्ट करो, ट्रस्ट योरसेल्फ। यस, कुछ ऐसा गलत भी हो जाए तो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, डू ऑल द थिंग्स यू कैन एम्पावर योरसेल्फ। विदाउट डूइंग ऑल द थिंग्स यू कैन नॉट एम्पावर योरसेल्फ। सो trust yourself and love yourself. बहुत very well said. It's truly एक डायरेक्शन देता है कि हम लोगों की लाइफ हम लोगों को टनल के जैसे क्यों लगती है, घुस तो गए लेकिन सिर्फ अंधेरा दिखता है। वी कैन नॉट सी द अदर एंड, के वहां पर भी ब्राइटनेस है, एक लाइफ है करके, वो दिखता ही नहीं है। वी आर लॉस्ट इन दिस टनल, लॉन्ग टनल के जैसा हो जाता है। तो यस, वी डोंट प्रायोरिटाइज आवरसेल्फ, और उसको करना चाहिए। अभी काफी अवेयरनेस है, मेनी पीपल गिव इट अ थॉट एंड वर्क टुवर्ड्स इट। गिव सम मी टाइम, थोड़ा वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, कहीं बाहर जाना, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, करते हैं। अभी वो थोड़ा डेवलप हुआ है। आप इस में हैं। हाँ, still I tell you that is all up to subconscious mind. वो कॉन्शियस माइंड में उनको ला के उनको करना है। वो सोचते तो हैं, I made people at least 60 to 70% वो सबकॉन्शियस माइंड तक आके रुक जाते हैं। हाँ करना है, ये मुझे भी करना है, मैं भी, पर they can't decide कि उसे पर्टिकुलरली उसे क्या करना है। हाँ, that person has to prioritize and decide for herself कि मुझे क्या करना है। करेक्ट। आपने सोच लिया करना है तो जरूर कर पाओगे, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में तो आना होगा ना। That's a big journey.
अभी आप मॉम्स ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, देख रही हैं एक्टिविटीज यहाँ की, तो what do you think, what is your take on this moms group and its activities and whatever we are doing here together? This is a lovely platform, very challenging, very good, but I can't, till now I was not able to give much time, but now I'll tell you the reason, because just a few months back I shifted. Right now I'm in Ahmedabad and I'm shifted here. And after that, coming here, I took up a new challenge. Like, ये बिल्कुल मेरे फील्ड से अलग. I did a flat renovation work, interior. So I was very busy with that for last 6 months. And I was telling Rashmi also, Rashmi, मेरे पास आजकल time नहीं होता है. Because of that, now I've been completed. And I did it myself and very passionately, and I'm very happy. Everyone liked it very much. So कुछ भी अंदर हो, मुझे लगता है वो कर लेना चाहिए. Last 6 months से मैं सब कुछ छोड़ के इसी में लगी हुई थी. तो I have learned so many things, so many, like upcoming कोई और भी project है तो I can help those people. I can share my experience. I can guide them कि आप अपना करवा रहे हो तो कैसे कर सकते हो. तो whatever the opportunity comes in my way, I took it as a challenge. And एक बार आप घुस जाओ ना, कहते हैं ना समुद्र में गोता लगाने की बात होती है. एक बार आपने डुबकी लगा ली तो आप तैर ही लोगे. तो I did it very. आप सीख जाते हो तैरना, फिर अगर बचना है तैरोगे आप. So I did it very well. It's beautiful. Congratulations for that. Thank you so much. And what is that one message or one advice or suggestion that you would like to share with our viewers today? My message is the same thing, same again, that little discipline everyone should have in their life, because that is very important. Little discipline and be yourself. आप जैसे भी हो, be yourself. Don't try to imitate or copy anyone, because that is not your strength. हम जब किसी को copy या imitate करते हैं तो उसमें हम कुछ और lose करते हैं, because every individual is unique. And उस uniqueness में जो beauty है वो copy में नहीं आता है. इसीलिए be yourself, love yourself, and satisfaction and contentment come through here. So if you are satisfied from here, if everywhere, everything is so beautiful. So that is my whole mantra: be yourself, love yourself, and whatever you do it passionately. कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है. आप कुछ भी करो, खुश होके करो और बहुत मन लगा के करो, तो definitely will get a very good result. That's it. Very well said and very well put. तो बहुत सही कहा मालविका ने जी ने कि खुद को पहले प्यार करो. जब आप खुद से पहले प्यार करोगे तभी जाके आप आगे कुछ कर पाओगे. खुद को ढूंढो, खुद की इच्छाएं ढूंढो, उसको पूरा करो. हम हमेशा दूसरों को सेटिस्फाई करने में, उनके एस्पिरेशंस को पुश करने में, वो हमको एक्सेप्ट करे, इसी होड़ में लगे रहता है. एंड वो लोग तो करते हैं, नहीं करते पता नहीं. एंड व्हाट शी सेड इज वेरी ट्रू कि हम खुद को गवा देते हैं. We have lost our self identity, self image ही हमारी, हमको ही नहीं पता हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं जिंदगी से. This is very true and I can relate it very well with what she is telling, because I have gone through it. And अभी past maybe 1 year से मेरी जर्नी खुद को ढूंढने वाली चली है. And I'm very happy to see my different phases of life. तो खुद को जब नहीं करते हैं ना, एक्सेप्ट नहीं करते हैं जैसे हो, खुद की इमेज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, खुद जो है जब तक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते ना, आपको आगे जाने का रास्ता ही नहीं दिखता है. पूरी दुनिया अंधेरा ही दिखता है आपको. There's nothing to look forward to, ऐसा लगता है. Very true, very well said, Malvika ji. And thank you so much for being with us today here. And viewers, please don't forget to comment, like and share this live, क्योंकि आज मालविका जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें एकदम सहजता से आसानी से बता दी हैं. मे बी किसी और लेडी का, किसी और बंदे का जीवन इससे चेंज हो सकता है. They might get some new track, some new path to it, and maybe they will look somewhere inwards and find that self satisfaction वाला एक जर्नी शायद शुरू हो जाएगा उनका. तो please like, comment and share this with your family and friends, and do keep following us. And yes, we are having a very big event on May 8th
called Udan on Mother's Day. So be part of it, and there are lots of surprises and a lot of guests we are having, very good speakers we are having with us, who will be sharing a lot of knowledge, and there'll be fun and frolic also. So don't forget to join us daily at 2:30 on Facebook and 7 p.m. on Instagram. So looking forward to seeing you all on Instagram today evening at 7 p.m. Thank you so much. Thank you, Malvika ji. Very nice to have you here today with us, and great learnings from you. Thank you so much. Thanks, Bhairavi. Thanks your all team and Rashmi as well. I mean, Rajeshwari Hindustani. Thank you so much. Thank you so much. Thank you all. Bye.